دل سے دنیا کی خواہشات سے علیحدہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوة الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ شکر گزاری میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آپ ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے پیروں سے زمین کو چوم رہے ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد مقرر ہے، اس مقدرہ حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دھوکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ معمولی باتوں پر پڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کو خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف بھی رکھتی ہے۔ لوگ فسانے نہیں بناتے، صرف اپنے خیالوں کو نئے جامے پہناتے ہیں جو خود انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی خیال کی پرچھائی کو پر اور پرزے خود ہی لگا دیتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس ندی کا حصہ نہیں بنتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ راستہ تو مشکل ہوتا ہی ہے۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آب حیات پیدا کی ہیں، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہے، اس میں جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔
पेड़ दरवेश हुआ करते हैं, सब्ज रखो तो दुआ देते हैं। बीमार वो नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असल बीमार तो वो है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, अल्लाह ताला उससे अपना अजाब रोक लेगा। जिसने अपनी ज़बान की हिफाजत की, अल्लाह ताला उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। जिसने अल्लाह ताला से माज़िरत की, अल्लाह ताला उसका उज़्र कबूल करेगा। अल्लाह का करम है तो खुश रहो मोहसिन, कहाँ के बिन जो अलम दम दस्तियाँ कैसी। हर बंदे में इंसान जैसे वस्फ नहीं होते। एक अक्लमंद इंसान इस बात को बखूबी जानता है कि हर शख्स से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हमें दो तरह से आजमाया जाता है, कभी हमसे हमारा सब कुछ छिन जाता है और कभी वो सब कुछ दे दिया जाता है जिसकी हमें चाहत होती है। दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी हैं, बस अब उन पर अमल करना बाकी है। मुश्किलात ज़िंदगी का हुस्न है और जो शख्स उन पर काबू पा लेता है वो अपनी ज़िंदगी को पामाना और बामकसद बना लेता है। ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है वो दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ़ ना करें। आखिरत की तैयारी में जल्दी करो, न जाने कब वो बीमारी लग जाए तो ज़मीन के नीचे पहुंचाकर ही दम लेती है। बहुत अजीब है कि हम खामोश रहने को एक गायब सा जानने लगे हैं, हालांकि ये एक बेहतरीन इबादत है। सरे बाम भी पुकारा, लबेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ न पहुँचा तेरी दीद की लगन में। वो होती है गुफ्तगू तुझसे जब गुफ्तगू नहीं होती। अपना बना लिया है जिसको भी इश्क ने, दुनिया की भीड़ में वो मारूफ हो गया है। हसद से उसी शख्स को नजात हासिल हो सकती है जिस पर तौहीद गालिब हो। किसी शख्स को भी दोस्त और दुश्मन ख्याल ना करो, हर शख्स को खुदा का बंदा जानो और तमाम मामलात को एक ही जगह से ख्याल करो। हसद करने वाला ये समझता है कि जिससे वो हसद कर रहा है उससे वो नेमत ख़त्म होकर उसके पास आ जाएगी। अपने भाइयों की पीठ पीछे दुआ किया करो, क्योंकि ये काम रोज़ी को तुम्हारे पास खींच लाएगा। हर शख्स की रोज़ी ऐसे ही मुकर्रर है जिस तरह उसकी मौत मुकर्रर है। यकीनन मुसीबतों में गिरे हुए नेक लोगों के लिए मौत बेहतरीन दवा है। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आवाज़ को देखकर अंजाम को पहचान लिया करो। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। लड़ाई झगड़ा सिर्फ वही शख्स करता है जिसका सीना तंग होता है। जो किसी झगड़े में किसी की नाहक मदद करेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ रहेगा, यहाँ तक कि वो इससे बाज आ जाए। बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। नेक आमाल को मशगला बनाना दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। जिस चीज़ के बारे में तुमसे बासपुर्स होगी उसमें मशगूल रहो। आरज़ुओं की धोखेबाजी आमाल को बिगाड़ कर रख देती है। जब तक अल्लाह की याद में तुम अपने नफ्स को भूल ना जाओ और अपने कामों से बेखबर ना हो जाओ, जब तक अल्लाह के ज़िक्र का हक अदा नहीं कर सकते। जो इस बात पर एतमाद करता है कि उसके लिए खुदा ने जो लिख दिया है उसे ज़रूर मिलेगा, तो उसका दिल आराम पा जाता है। मानदार शख्स हरगिज़ मान के ज़्यादा होने की वजह से मौत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। हिर्स और लालच इंसान के नफ्स को दावदार कर देते हैं, दीन को बिगाड़ देते हैं
اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور حق خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکشی غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو طلب تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے و غم دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابلے طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریر سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو۔
ताकि लफ्ज़िशों से महफूज रहो। बेहतर दिनों की आस लगाते हुए कतील हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। सच्चाई शेर की तरह होती है, उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगी। कभी यूँ लगता है जैसे हम एक बंद गली में बंद हैं, कोई दरवाज़ा न खिड़की है और हवाएं भी बोझिल हैं। कभी चारों तरफ है रास्ते मंजिल और पैरों में बंधन है, जो मिलता है रहबर लगता है अब पहलू में खंजर है। कभी हाथ पकड़ के हमको गुम रास्ते में कर देते और जुगलों राह दिखा के तारीकी में खो जाते। हालात के धारे पर है अब देखो किधर जाते हैं। ए मुसलमान अपने दिन से कुछ, मुल्ला से न कुछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। बहादुरी के सबक के बगैर हर अच्छाई सिर्फ दिमागी मसलों का सबब बनती है। चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकी, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कन पे सलीब। नफ्से अम्मारा को भी मारोगे तो कुरान की तलवार से मारोगे, वैसे ये नहीं मरेगा। और शैतान से लड़ने के लिए भी यही तलवार काम आएगी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में कुरान मजीद की सूरत में दी है। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। अमल के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं उसूल किस्मत का है। जिसे मान कर तुझे मिलेगी जन्नत, वो तेरा नफ्स है कोई और नहीं। अल्लाह के दोस्तों की रूह हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती है, इसी वजह से आम लोगों की रूहें अल्लाह के दोस्तों की बारगाह में जाकर खुश हो जाती हैं। किसी के खुलूस और मोहब्बत को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और मोहब्बत तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। दुनिया की इज्जत पर फ़ख्र ना करो, इसलिए कि इसकी इज्जत और फ़ख्र दोनों मिट जाने वाले हैं। जब तक तुम दुनिया से रोगर्दानी नहीं कर लोगे, उस वक्त तक तुम्हारे दिलों के लिए ईमान की मिठास का एहसास हराम होगा। आदमी माल और दौलत की कसरत से गनी नहीं होता, बल्कि असल गनी दिल का गनी होता है। इबादत गाहों को इंसान नहीं इश्क आबाद करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए दी ताकि तुम उसके ज़रिए से आखिरत तलब करो। दूसरों के दिन से कीना और शर को ख़त्म करना है तो पहले अपने दिन से निकाल कर फेंको। आरज़ू वाफिलों के दिन पर शैतानों की सल्तनत होती है। खामोश रहना उन चीज़ों के लिए लिबास है जो मालूम ना हो। इज़्ज़त आबरू की ज़ीनत है, जो शख्स खामोश रहता है आराम पाता है और उसके साथ रहने वाले महफूज होते हैं। फ़कीर की सखावत उसे बुलंद मर्तबा बना देती है, जबकि मालदार की कंजूसी उसे ज़लील कर देती है। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। हद से ज़्यादा हसरतें इंसान को नीलाम कर देती हैं। ये दुनिया एक जाल है जिसका चारा ख्वाहिशें है। इस जाल से बचो और जल्द अपना चेहरा खुदा की तरफ मोड़ लो। शयातीन इस मुक़द्दस माह में कैद है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप और हम जो कुछ भी इस दौरान कर रहे हैं, यही हमारी असल हकीकत है। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत और गुस्से में नुकसान है।
حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کیے ہوئے چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتا کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سریعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں، اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر سنبھالو۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دور میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ قدمے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رم میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا، ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے،
थक कर बैठ जाने का नाम जिंदगी नहीं। बेवकूफ़ आदमी का असल अलमिया ये है कि उसकी कोई बेवकूफ़ी आपनी नहीं होती। जो दूसरों के गम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। नफ्स की पाकीज़गी ये है कि इंसान बहुत देर से गुस्से में आए और बहुत जल्दी माफ़ कर दे। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस तरह इंसान का ज़ल्फ़ आज़मा लिया जाता है। ये दुनिया एक पहाड़ है और हमारे आमाल आवाज़ जो लौट कर हमारे पास ही आने वाली है। सच्ची लगन, मुसलसल कोशिश और लब से दुआ तसव्वुर को तस्वीर बना देती है। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद को अपने साथ पाओगे। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। कामयाबियों के महल कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़े होते हैं। अगर तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी शिर्क ना करना। मोमिन का मर्ज उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। रिश्तों के तय करने में दीनदारी को सबसे आगे रखो। तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। वक्फे से मुलाकात किया करो, इससे आपस में मोहब्बत ज़्यादा होगी। मोमिन निहायत नरमी से बात करता है, हत्ता के लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं। खुदा की मखलूक में खुदा के नज़दीक मबूस तरीन शख्स वो है जिसकी ज़बान से लोग डरें। जितनी मुसीबत ज़्यादा होगी उतना ही अजर ज़्यादा होगा। खुदा जिन लोगों को दोस्त रखता है उनको मुसीबत में ज़रूर मुब्तला कर देता है। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि वो तुम्हें बेहतरीन जवाब लौटाए। वो जुल्म जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो बंदों का एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती करना है। सब्र के साथ परेशानी का खात्मा करो, क्योंकि परेशानी और गम जज़ा को ख़त्म कर देती है और मुसीबत को भुला देती है। जो शख्स नेकी करके खुशी महसूस करे और गुनाह सरज़द होने पर गमज़दा हो जाए वो मोमिन है। बेशक मोमिनीन ही एहसान करने वाले होते हैं। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। अदब का हासिल कर लेना दौलत के हासिल करने से बेहतर है। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत में ना बेचना। लोगों से इस तरह घुल मिल जाओ कि अगर मर जाओ तो वो तुम पर रोएं, और अगर कहीं चले जाओ तो तुम्हारे आने का इंतज़ार करें। किसी के खुलूस और मोहब्बत को उसकी बेवकूफ़ी ना समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और मोहब्बत तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली। जिसे अपने करीब करना चाहते हो उसे मकाम देना शुरू कर दो। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। जो माशरा दूसरों का हक मानना अपना हक समझता है वो माशरा बेमौत मर जाता है। जितनी बड़ी मुश्किल मिलती है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। कम इल्म इंसान ही ग़ीबत करता है, आलिम को तो इल्म बांटने से फुर्सत ही नहीं मिलती। खुद एतमादी में अगर तकब्बुर दाखिल हो जाए तो ये बदतरीन अनापरस्ती है। रूहानियत सिखाई नहीं जा सकती, बुलाई नहीं जा सकती, ये इख्तियार की जाती है। बुरे लोगों की सोहबत नेक लोगों से बदगुमानी पैदा करती है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। सच्ची मोहब्बत की निशानी ये है कि मोहब्बत किसी नेकी से ना बढ़े
और न किसी बुराई से घुटे। जिंदगी ऐसा जलवा है जिसे पूरी तरह देखा भी नहीं जा सकता और पूरी तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता। हर सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में मशगूल हो जाओ, सादत पा जाओगे। अल्लाह का रास्ता मोमिन के दिल के दरवाजे से शुरू होता है। ना तो अच्छी ज़िंदगी से मोहब्बत करो और ना नफ़रत, लेकिन तुम जो ज़िंदगी बसर कर रहे हो उसे अच्छी तरह बसर करो, हाँ वो कितनी ही तवील या कलील हो। हालात और हादसात की तब्दीलियों के दौरान लोगों की फितरत और हकीकत पहचानी जाती है। दुनियादारी पर मबनी मोहब्बत मामूली सी बात पर ख़त्म हो जाती है। हर काम की तरफ हाथ बढ़ाते वक्त अगर ये ख्याल आ जाता है कि काम ऐसा ना करूं जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो जाएं, तो आप मंजिल पा गए। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। ख्याल में बड़ी ताकत होती है। अगर ख्याल तामीरी हो तो इंसान बुलंदियों पर पहुंच सकता है। नेक अमल दिल को ऐसे तरोताज़ा रखता है जैसे बारिश ज़मीन को। जो चाहता है कि अपने रब को पहचाने, उसे चाहिए कि अपने नफ्स को पहचाने। नफ्स के खिलाफ जिहाद जन्नत की कीमत है। गुनाहों का छोड़ देना तौबा करने से ज़्यादा बेहतर है। जो लोग दर्द को महसूस करते हैं वो कभी दर्द की वजह नहीं बनते। सबसे ज़्यादा तेज़ मजलूम की दुआ है कि उसकी बद्दुआ तीर का काम करती है। अक्लमंद दोस्त की दोस्ती रूह के लिए ज़िंदगी का काम करती है। अक्ल का बेहतरीन दोस्त अदब है। अगर अदब होता है तो अक्ल सबर जाती है। मोमिन की खुशी उसके रब की पैरवी में है और मोमिन का गम उसके गुनाह पर होता है। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत कमज़ोर अक्लों को बर्बाद कर देती है। जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है उस पर राज़ी रहो ताकि मोमिन और महफूज रहो। जो शख्स अपने ऐबों पर अपने नफ्स को मलामत करे वो बहुत से गुनाहों से बच जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो अल्लाह के इंतकाम की शिद्दत से वाकिफ़ है, फिर भी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। मोमिन के गैरतमंद होने में इतना ही काफ़ी है कि जब वो किसी बुराई को देखता है तो उसे पसंद नहीं करता। अपनी ज़बान की हिफाजत करो ताकि इज़्ज़त और सरबुलंदी नसीब हो। किसी की ख़ता पर खुशी का इजहार ना करो, क्योंकि तुम खुद भी तो हमेशा के लिए सीधे रास्ते के मालिक नहीं हो। जो शख्स अपनी लिज़्ज़त तलाश कर रहा हो उसे कभी मलामत मत करना, इसलिए कि जिसके पास रोज़ी नहीं होगी उसकी गलतियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। जिसका दिल नेक हो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। मौत को बहुत याद किया करो, इससे दिल नर्म हो जाता है। तुम में से पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ रखने वाला हो। जिस कदर खुदा के एहसानात को याद करोगे उस कदर खुदा से मोहब्बत हो जाएगी। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। जन्नत को वही हासिल करेगा जिसने अपने नफ्स को मशक्क़त में डाला। जो चीज़ें खुदा ने हराम करार दी हैं उन्हें छोड़ दो ताकि परहेज़गार लोगों में शामिल हो जाओ। बुरा और आलूदा शख्स वो है जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, क्योंकि वो उन्हें भी अपने जैसा ही समझता है। मोमिन हर वक्त अच्छे कामों में मसरूफ़ रहता है। कोई चीज़ तुम्हारी रूह और तुम्हारे वक्त से ज़्यादा कीमती नहीं। जो लोगों से दुश्मनी रखता है वो नतीजे में शर्मिंदगी पाता है। दुनिया की सल्तनत ज़िल्लत है और उसकी बुलंदी पस्ती है। तुम्हारे अंदर दिलचस्पी रखने वाले से तुम्हारी दूरी
किस्मत की खराबी है। तौबा और इस्तिग़फ़ार का थोड़ा सा हिस्सा भी गुनाहों और उनकी तकरार को मिटा देता है। अगर तुम्हें अपने भाई में कोई कमी नज़र आए तो उसकी मुखालिफ ना बन जाओ, बल्कि उसे नसीहत करो और उसकी रहनुमाई करो। झगड़ा करने से बचो, वरना तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। बेवकूफ़ अपने शहर में ही अजनबी और गरीब है और अपने अजीज़ों में जलील है। लालची आदमी गरीब है, फिर चाहे वो पूरी दुनिया का मालिक हो जाए। फजूल बातों से बचो, क्योंकि ये तुम्हारे छुपे हुए ऐबों को जाहिर करती हैं और तुम्हारे खामोश दुश्मनों को हरकत में ले आती है। लालची इंसान जल्दी धोखा खा जाता है। जो ज़माने पर एतमाद करता है, ज़माना उससे खयानत करता है। किसी नेक अमल की तौफीक होना ही उसके कबूल हो जाने की निशानी है। ज़बानी तौबा करना झूठों का काम है। तौबा दिन से की जाए तो दोबारा तौबा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के दोस्त का मतलब है अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रूरतमंद होना और उसकी तलब रखना। अगर सारे जहां का गम भी तेरे दिल पर छा जाए तो गम ज़दा ना बन, समझ ले कि ये गुजर जाएगा। अगर इंसान कबूल कर ले कि उसकी ज़िंदगी के साथ होने वाले वाक़यात और ज़िंदगी का अंजाम बनाने वाले के हुक्म से है, तो ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो किसी ताज और तख्त या दौलतमंद इंसान की परवाह नहीं करती। वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद चीज़ है। गुनाह के असबाब और उसके ज़राए से दूर रहने वाला हुक्म इलाही का एहतराम करता है। तेरी गफलत की निशानी वाफिल लोगों के पास बैठना है। दुनिया जेब में रखने की चीज़ है, दुनिया हाथ में रखने की चीज़ है, लेकिन दिल में रखने की चीज़ हरगिज़ नहीं। दिल पाक ना हो तो जिस्म की तहारत बेफ़ायदा है। कसरत से दुरूद पढ़ना तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले कोई आम नहीं होते, ये वो ख़ास लोग होते हैं जो चुन लिए जाते हैं। मान और मर्तबा ये दो बड़े बुत हैं, इनको तोड़ डालो। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सकता हो। अदल और इंसाफ से नेमतें दोगुनी हो जाती हैं। मौत की तरफ बढ़ने का सरो सामान करो कि अगर तू इससे भागेगा तो वो तुम्हें पा लेगी, और अगर ठहरे तो वो तुम्हें गिरफ्त में ले लेगी, और अगर तुम इसे भूल भी जाओ तो वो तुम्हें याद रखेगी।